ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭಾರತ ಕಿ ಧರತಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ. ಈ ಕ್ಲಾಸು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇದು ಜೊತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಕಿ ಧರತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಾರತದ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಭೂಮಿ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿವಿಧತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಣ್ಯಂಚಂದ್ ಮಾನವ ಕವಿಯವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾರತ್ ಕಿ ಧರತಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ, ಈ ಡೇದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ಭಾರತ್ ಕಿ ಧರತಿ ಈ ಸಮರಿ ಮತ್ತು ಈ ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ. ಮತ್ತು ಹೇಳುವನೆಂದರೆ ಈ ಪಾಠದ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ MCQ ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇವೆ, कितने हैं यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन, यहाँ पर 7 है 3 मार्क्स के क्वेश्चन. इन 3 मार्क्स को क्वेश्चन को ಕನೆಕ್ಟ್ करते हुए ನಾವು ಈ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಮತ್ತು ಈ ಪಾಠದ ಈ ಪದ್ಯದ ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಮರಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ विद्यार्थी मित्ररे. मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा. अभी हम लोगों के पास समय बहुत कम है, लेकिन खुशी की बात यह है अभी भी हम लोगों के पास समय 1 महीने के ऊपर है. तो प्रस्तुत कविता भारत की धरती काव्यांजलि से चयनित. इसमें कवि ने भारत के विभिन्न प्रांतों के गौरवमय इतिहास, ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ गौरवमय इतिहास, सांस्कृतिक परिचय के साथ ही साथ कर्नाटक के प्रति गौरवपूर्ण भावनाओं को कविता रूपी माला में पिरोने का महत्व कार्य किया है. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಪಂಪ, ಪೊನ್ನ, ರನ್ನಿ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವಿವಿಧತೆ, ಸಂತ ಮಹತ್ವರು ಮತ್ತು ವೀರ ಪುರುಷರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿयों में जोश, ನಿಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೋಶ್, विद्यार्थियों में जोश तथा उमंग भरने एवं देश की महानता से अवगत कराने हेतु इस कविता का पाठ्यक्रम में रखा गया. तो ये ऐसा जोश आप लोगों को भरना है. मैं अभी स्टार्ट करता हूँ विद्यार्थियों, आप लोगों को यहाँ पर समझो. कविता लंबी होगी लेकिन इसको ध्यान से समझना, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी. लेट्स गेट स्टार्ट. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಧರತಿ ವೀರೋ ಸಂತೋ ಕಿ ಧರತಿ ಹೇ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಧರತಿ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ವೀರ ಮತ್ತು ಸಂತರ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಧರತಿ ವೀರೋ और संतों की धरती है. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮನ್ ಮೇ ಮೃದ್ ಮಂಗಲ ಭರತಿ. ಈ ಭೂಮಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣವನ್ನು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಮಂಗಲವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಧರತಿ ವೀರೋ ಸಂತೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಧರತಿ ಎಂದಿದೆ, ವೀರ ಮತ್ತು ಸಂತರ ಧರತಿ ಇದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರದ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ, ಇವು ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ, ಈ 2 ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಂಗಲನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಹಮಾರೆ ಮನ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಮಂಗಲ ಭರ್ತಿ ಹೈ. राम हमारे पुरुषोत्तम राम, और राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, कृष्ण का जन्म मथुरा जेल के अंदर है. इन दोनों का जन्मभूमि क्या है, हमारी भारत की धरती है. उत्तर में ನೋಡ್ರಿ, उत्तर में देखो, उत्तर में क्या है, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तरದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ उत्तर प्रदेश में ಕಾಶಿ, ಪ್ರಯಾಗ್, ಹರಿದ್ವಾರ, ಜಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ, ಪ್ರಯಾಗ್, ಹರಿದ್ವಾರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದಿವೆ. ಮಾಲಿಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೆ, ಕಬೀರ್ ಕೆ, ತುಳಸಿ ಕೆ ಉದ್ಗಾರ ಜಹಾ. ಮಾಲಿಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈಸಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೂಫಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕವಿದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಂತರಾದ मालिक मोहम्मद जैसी सूफी संतों में सबसे प्रमुख, सबसे माने हुए कवि कौन है, यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी है.
ಕಬೀರ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಉದ್ಗಾರ್ ಜಹಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಬದ್ರಿನಾಥ್ केदारनाथ से तीर्थों का यहाँ स्थल पावन है. ಇಲ್ಲಿ बद्रीनाथ ಮತ್ತು केदारनाथ ये जो हमारे जो धार्मिक जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल है ये उत्तर में है, उत्तर में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में. ಮಾಕನ ಭೋಗ ಲಗಾನೆ ವಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ನಯ್ಯ ಮಹಾನ ಭಾವನ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಕನ ಭೋಗ ಹಚ್ಚವನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. माखन चोर काना, यहाँ पर माखन भोग लगाने वाला है मन भावन. यह भूमि रावण कंसों के दर्प दलन भी करती है. यह ಭೂಮಿ ರಾವಣ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು उत्तर प्रदेशದಲ್ಲಿ. कंसों का हत्या किसने किया? कृष्ण किया. इसका भी जन्म कहाँ है? उत्तर में हुआ है, उत्तर प्रदेश में. ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश की करती है. भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है. नम भारत माते है वीरों संतों की धरती है. ठीक है, ये क्वेश्चन में देखो इसके अंदर क्या है? उत्तर प्रदेश में काशी, प्रयाग, हरिद्वार जहाँ मालिक मोहम्मद के, कबीर के, तुलसी के, उद्गार जहाँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थों यहाँ स्थल पावन, माखन भोग लगाने वाला कृष्ण कन्हैया मन भावन. यही भूमि रावण और कंसों के दर्प दलन भी करती है. रावण और कंसों को मारने वाला है यही भूमि है उत्तर प्रदेश में. तो अयोध्या में राम का जन्म हुआ है, इधर मथुरा के जेल के अंदर श्री कृष्ण का जन्म हुआ है. भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है. राइट. नेक्स्ट देखो, मस्तक 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 अंदर अपना हेड, मस्तक ऊंचा किए हिमालय. हमारा हिमालय का मस्तक ऊंचा है. जिसके बल पर खड़ा हुआ, कौन खड़ा है भाई? जिसके बल पर, हिमालय के बल पर कौन? यहाँ पंजाब केसरी. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕೇಸರಿ, ಪಂಜಾಬದ ಕೇಸರಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್. ಪಂಜಾಬ್ ಕೇಸರಿ ಇದು ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. लाला अपने ही बल पर अड़ा हुआ रण में तेग बहादुर, जिसका बच्चा बच्चा वीर है. मन भजन भाव में शुरू, भजन भाव में गुरु नानक की वाणी जैसा धीर है. जिस धरती के गर्जन से जगती की गर्जन डरती है. भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ पंजाब अंदर ಇಲ್ಲಿ मस्तक ऊंचा किए हिमालय. हिमालय का मस्तक ऊंचा है. नोट नम हिमालय इतना ऊपर है, ऊंचा है. जिसके बल पर अड़ा हुआ है, जिसके बल पर अड़ा हुआ है कौन है? यहाँ पंजाब केसरी. पंजाब ಅಂದರೆ पंज 5 नदी संगमದಿಂದ पंजाब ಅಂದರೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. पंजाब किस लिए नाम पड़ा है? उसमें 5 नदियों का संगम है. सतलज, झेलम, रावी, चिनाब जी, इस तरीके से 5 नदियों से पंजाब का पंज ಅಂದರೆ पंजन है. अपने ही बल पर अड़ा हुआ है. पंजाबी विशेषता ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, रण में तेग बहादुर, ರಣದಲ್ಲಿ तेग बहादुर, तेग बहादुर जिसका बच्चा बच्चा वीर है. रण में तेग बहादुर. तेग बहादुर एक ऐसा महान जो थे हमारे सिखों धर्मों के अंदर, जो हमारे जो गुरु तेग बहादुर थे, जो कि वहाँ पर वो झुका नहीं, अपना सिर कटा दिया. हम सबको पता है औरंगजेब ने कट्टरता के साथ हमारे देश के अंदर धर्म परिवर्तन कर रहा था. उसको धर्म को न परिवर्तन होने के लिए तेग बहादुर ने अपना सिर कटवा दिया था, कलम कटवा दिया था. लेकिन वहाँ धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, झुके नहीं, कटे. तो तेग बहादुर है जो गुरु तेग बहादुर, जो कट गए लेकिन झुके नहीं है. और भजन भाव में गुरु नानक की वाणी जैसा धीर है. गुरु वाणक, जो गुरु हमारे गुरु नानक जी है, जो कि सिख धर्मों के अंदर जो हमारे जो गुरु नानक है सबसे प्रमुख है. गुरु नानक की वाणी आज भी इतनी प्रिय वाणी है. हम जैसे कबीर की वाणी सुनते हैं वैसे गुरु की वाणी सुनते हैं, तो वो आज भी क्या है, हमारे मन को भर देती है. तो कहने का मतलब क्या है, पंजाब में कौन है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय है. इसके अंदर क्या है, हम गुरु तेग बहादुर को, बलिदानों को हम भूल नहीं सकते, जिसने धर्म के लिए अपना सर कलम करवा दिया, सर कटवा दिया, लेकिन झुके नहीं. ठीक है, इस तरीके से पंजाब का हम बता सकते हैं. अभी चलो, वेद उपनिषद ज्ञान गीता का महत्व प्रदाता है. सरस्वती सरिता तट वैदिक मंत्र का उद्गाता है. हरित हरित भरित हरियाणा जहाँ भीम युधिष्ठिर का स्थल है. धर्म कर्म संस्कृति सभ्यता बल पौरुष संबल है. इंद्रप्रस्थ के सम्मुख इंद्रपुरी पानी भरती है. भारत माता की धरती वीर हरियाणा. ಹರಿಯಾಣದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, हरित भरित हरियाणा. हरियाणा ನಮ್ಮ हरियाणा, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो हरा भरा रहता है. जहाँ पर क्या है, हरियाणा की विशेषता क्या है? हरियाणा का नोट रहे, वेद उपनिषद ज्ञान गीता का तत्व प्रदाता है. गीता, हरियाणा के अंदर गीता, जो हमारे जो श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दिया था महाभारत के अंदर, वो कहाँ था? हरियाणा के अंदर ही था, जहाँ महाभारत की जो युद्ध हुई थी, कुरुक्षेत्र, जहाँ 18 दिन की जो युद्ध लड़ा गया था, जो कौरव और पांडव का, जो कहाँ पर है, वो हरियाणा के अंदर. जो गीता का तत्व प्रदाता, वेद उपनिषद ज्ञान सब क्या है,
हरियाणा के अंदर ये सरस्वती सरिता तट, सरस्वती नदी है तट, वैदिक मंत्रों का उद्गाತ है. मैं बहुत ಸ್ಪೀಡ್ से ಬತಾ रहा हूँ, ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ 3 तास ಅಂದರೆ 3 घंटे की क्लास चलती है. हम क्लास में मैं बहुत शॉर्ट से बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर भी बहुत ज्ञान दे रहा हूँ. हरियाणाದಲ್ಲಿ अर्जुन भीम युधिष्ठिर का स्थल है. अर्जुन भीम युधिष्ठिर. अर्जुन यार रे पांडव, 5 पांडव के अंदर अर्जुन भीम युधिष्ठिर और 2 कौन रह गए, नकुल सहदेव रह गए. ये 5 पांडव का जन्म कहाँ हुआ, हरियाणा के अंदर हुआ. ऐसा है हरियाणा का विशेषता है. देखो 5 पांडव है, अर्जुन भीम युधिष्ठिर ये कुंती के पुत्र है, नकुल सहदेव ये माद्री के पुत्र है. तो पांडव के 5 पुत्रों में से 3 पुत्र कुंती के हैं. अर्जुन है बहुत बड़े धनुर्धारी, भीम है गदाधारी, युधिष्ठिर है धर्म के प्रतीक. तो ये 3 महान स्थलों को कहाँ है, हरियाणा में हुआ है. तो धर्म कर्म सभ्यता बौल पौरुष संबल है. धर्म क्या है, कर्म क्या है, संस्कृति सब सभ्यता का है, बौल पौरुष का संबल है हरियाणा. इंद्रप्रस्थ के सम्मुख इंद्रपुरी भी पानी भरती है. इंद्रप्रस्थ के सम्मुख इंद्रपुरी भी पानी भरती है. जो इंद्रप्रस्थ जो था हम सबको पता है, महाभारत में इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली को ही कहा जाता था है. सम्मुख इंद्रपुरी, इंद्र की नगरी है, इंद्रपुरी भी पानी भरती है. मैं ज़्यादा डीप में जाऊंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी. भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है. हाय अर्जुन भीम युधिष्ठिर का जन्म स्थल है, जो कि मैं उसकी माता के बारे में बता दिया हूँ. तो इस तरीके से क्या है हरियाणा के बारे में लिख सकते हैं. ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಹರಿಯಾಣ ಆಯಿತು, ಸಾರಿ ಈಗ ಹರಿಯಾಣ हो गया. अभी राजस्थान ನೋಡ್ರಿ, राजस्थान ಇವು क्वेश्चन भी कनेक्ट ಆಗ್ಲತ್ತದ ಹಿಂದಿಂದು. आप जैसे जैसे है ना इसके क्वेश्चन को भी करो. हरियाणा के बारे में बता दिया, पंजाब के बारे में बताया, उत्तर प्रदेश के बारे में बता दिया. भाई ರಾಜಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೀರ ಅಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೆಸರೇ ಬರ್ತದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನದ. राजस्थान चलो तो सुन लो राणा की हुंकार. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿದ್ರೆ ರಾಣಾ ಕಿ ಹುಂಕಾರ. ಹುಂಕಾರ ಅಂದರೆ ರಾಣಾ, ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. महाराणा प्रताप ठीक है, जो कि मुगलों के साथ उसका क्या था, वही अकबर के साथ लड़ रहे थे, अकबर के साथ लड़ रहे थे. राजस्थान चलो तो सुन लो राणा की हुंकार. यहाँ हल्दी घाटी की चट्टानों पर खनकी तलवार. यहाँ देखो राजस्थान चलो तो सुन लो. राजस्थान ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು, राणा की हुंकार. राणा ने जितना लड़ाई किया था ना मुगलों के साथ, उसकी राणा की वह वीर गाथा है राणा की. महाराणा प्रताप की वीर. महाराणा प्रताप का के घोड़ा था चेतक घोड़ा, जिसने महाराणा प्रताप को युद्ध के अंदर महाराणा को बचा लिया. खुद वो शहीद हो गया, एक लंबी सी छलांग लगाकर कूद के इधर से उधर नाला के उधर. इस तरीके से हल्दी घाटी की चट्टानों पर खनकी तलवार. ये महाराणा पर मुगलों और ಮಹಾರಾಣಾ की युद्ध कहाँ होता, हल्दी घाटी ಒಂದು ಜಾಗ ಅದ, ಹಲ್ದಿ ಘಾಟದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗಿತ್ತು. ಹಲ್ದಿ घाटी. स्वाभिमान में ऊंचे मस्तक झुके नहीं कट सकते. स्वाभिमानी ಸಲುವಾಗ ऊंचे मस्तक ನಮ್ಮ ಮಂಚಕ ಉಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಕ ऊंचा ಇದೆ, झुके नहीं ನಾವು हम झुके नहीं कट सकते. ಅಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಂದ್ರೆ झुक नहीं सकते, हम कट सकते हैं. युद्ध क्षेत्र में गोरा बादल कट कर भी डट सकते. ये गोरा बादल की कहानी मैं आपको क्या बताऊं. ये गोरा बादल मालिक मोहम्मद जैसी, हमने जो पीछे पढ़े थे ना मालिक मोहम्मद जैसी, यहाँ पर जो मलिक मोहम्मद जैसी हमने पढ़े थे. देखो यहाँ पर एक मलिक मोहम्मद जैसी हमने सूफी संत मलिक मोहम्मद, देखो ये मलिक मोहम्मद जैसी है. ये जो मलिक मोहम्मद जैसी एक कविता लिखा था पद्मावत, जो हम पद्मावत, ये पद्मावती है एक, यहाँ पर पद्मावती इसकी कहानी है. इस पद्मावती के अंदर क्या हुआ है, ये जो मालिक मोहम्मद जैसी लिखा था, पद्मावती के अंदर अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देता है. जो कि देखो ये कहानी है, स्टोरी है. अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को क्या है पद्मा क्या है, वहाँ पर उसकी रतन सिंह, राजा रतन सिंह की 2 पत्नी होती है, जो कि पद्मावती बहुत खूबसूरती होती है. उस खूबसूरती को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी क्या है, चित्तौड़ के ऊपर अटैक करता है. चित्तौड़ को अटैक करने के बाद हार जाता है. हार जाने के बाद क्या है वो वापिस जाता है तो अपने साथ किसको, रतन सिंह को ही, राजा को किडनैप करके लेके चला जाता है दिल्ली. दिल्ली में जाने के बाद उसको छुड़ाने के लिए कौन जाते हैं, गोरा और बादल है ना, उस रतन सिंह को छुड़ाने के लिए दिल्ली जाते हैं. दिल्ली जाने के बाद राजा को तो छुड़वा देते हैं, लेकिन बेचारे दोनों कटकर मर जाते हैं. लेकिन कटकर मर गए, लेकिन डट गए, रुक गए, भागे नहीं.
कायर नहीं बने, वो कट गए लेकिन वहीं मर गए, लेकिन वो भाग गए नहीं, लेकिन रतन सिंह राजा को अलाउद्दीन खिलजी की रियासत से उसको छुड़वा कर ले आ जाते हैं। ऐसे हो वहाँ पर जहाँ वीरता सेनानी जौहर की कीर्ति निखारती है। वीरता सेनानी ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜೋಹರ್ क्या था, एक प्रथा था ಜೋಹರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಥೆ ಇತ್ತು, ಸತಿ ಪ್ರಥೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರಲ್ಲ. ಗಂಡ ಸತ್ತರೆ ಆ ಹೆಣನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಸುಡ್ತಿದ್ದರು. ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಥೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತದಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಚೀತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಾಡೋರು ಅದು ತಪ್ಪ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು राजा राम मोहन राय आकर इस पद्धति को हटा दिया। चलो, तो यहाँ पर क्या है, कंफ्यूज नहीं होना विद्यार्थी मित्रों। जहाँ वीरता सेनानी यहाँ पर औरतें हैं। जौहर यानी कि जो पति मर जाता है उसके अंदर क्या है, अपना खुद का शरीर को जला देती है, कीर्ति निखारती है। भारत माता की धरती, वीरों संतों की धरती। यहाँ पर क्या है, पद्मावती ने रतन सिंह वापिस आते हैं, रतन सिंह भी मर जाते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर स्त्री भी अपने पति के अंतिम क्रिया जो डेड बॉडी उसके अंदर वो भी मर जाती थी। उसको जो सेनानी बोलता है, जहाँ वीर जो है शौहर कीर्ति निखारती है। भारत माता की संति वीर संतों की धरती। तो यहाँ पर राजस्थान के बारे में लिखना है, महाराणा प्रताप के बारे में लिखना है, गोरा बादल के बारे में लिखना है, और हल्दी घाटी के बारे में लिखना है, और वहाँ की स्त्री के बारे में लिखना है जो कि पति मर जाने के बाद स्वयं इच्छा से अपने ही आग के अंदर, उसके अंदर अपना आत्मदाह कर लेती है, मतलब खुद जल जाती थी। तो ये है राजस्थान भूमि की वीर गाथा। नेक्स्ट बिहार नोड्री, बिहार में चलो, बिहार की भूमि जहाँ पितरों का तर्पण होता है। बिहार भूमि पितरों का तर्पण अंदर हमारे हिंदू धर्म मान्यता के अंदर जब पिता मर जाते हैं उसको जो है अंत्येष्टि, उसको क्या है, गंगा के अंदर बहाते। वहाँ है बिहार के अंदर। जेपी के इंगित से दासु आत्मसमर्पण करते हैं। जेपी अंदर जेपी जयप्रकाश नारायण इंगित से दास से आत्मसमर्पण करते हैं। दास जेपी, देखो जेपी बहुत बड़े लीडर थे बिहार के, वो एक भी इशारा कर देते थे और डाकू लोग भी उसको सरेंडर कर देते थे। विश्व गुरु कहलाने वाला, विश्व गुरु कौन कहलाया है, कहलाने हम भारत नोड्री ನಾವು ಭಾರತರಿಗೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। ಯಾವ विश्व गुरु कहलाने का कारण क्या है, नालंदा वैश्वली जो विश्वविद्यालय थी जो हमारे भारत के अंदर थी वो थी बिहार के अंदर, उसकी वजह से हम विश्व गुरु कहलाते हैं। गौतम बुद्ध और महावीर, वर्धमान महावीर ने अपनी परंपराएं पाले। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, महावीर को, ये सब बिहार के अंदर ही है। बिहार की भूमि बहुत पवित्र भूमि है। शांत क्रंत्र दृष्टा प्रदेश, शांत और शांत स्वभाव वाला प्रदेश है। नूतनता नित्य उभारती है। भारत माता की धरती, वीरों संतों की धरती है। बिहार के बारे में इतना ही लिखना है। बिहार की भूमि जहाँ पितरों का तर्पण होता है, पितर मर जाते हैं, हमारे पिता मर जाते हैं, उसकी आत्मा अंत्येष्टि को वहाँ पर विसर्जन किया जाता है बोध गया में। जेपी एक लीडर थे, वो एक इशारा करने से डाकू लोग भी आत्मसमर्पण कर देते हैं। विश्व गुरु कहलाने वाले दो हमारे यूनिवर्सिटी नालंदा वैशाली है जो कि विश्व गुरु, उस टाइम पे विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर हमारे भारत में पढ़ने के लिए आते थे, इसलिए हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था। तो आज भी हम जो नालंदा विश्वविद्यालय, इन दोनों को क्या है, बख्तियार खिलजी जो हमारे बहुत बड़े क्या है, बड़े तो क्या कहें, बख्तियार खिलजी, इसको पूरा का इन दोनों ये नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध है जो कि यहीं उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, गौतम और जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इस तरीके से आपको बिहार के बारे में लिख देना है। ठीक है, मैं शार्ट में दक्षिण ಚರಣ ಪಕಾರೆ रत्नाकार रत्नों की खान है। दक्षिणದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ रत्नाकार रत्नದ खान ಇದೆ। तमिलनाडु में खंब दे रहे हैं रामायण का ज्ञान। इल दक्षिण का क्वेश्चन आएगा, तमिलनाडु में खंब दे रहे हैं रामायण का ज्ञान। तमिलनाडु में तो खंब देते हैं रामायण का ज्ञान, संस्कृत में देते हैं वाल्मीकि रामायण का ज्ञान, अवधि में देते हैं गोल्स्वामी तुलसीदास ज्ञान, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಕುವೆಂಪುರವರು ರಾಮಾಯಣ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ। ಕೇರಳ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸಭ್ಯತಾ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಏನೆಂದರೆ सभ्यता प्रदेश ಇದೆ, संस्कृति धर्म विधायक है। देखो ठीक है, तिरुपति हो गया, हमारे बड़े बड़े जो टेम्पल है ना, कहाँ आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, साउथ में है, ये सारे आपको लिखना है। महाराष्ट्र मराठे शिवाजी के कृत्य के गायक है। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज जो धर्म के लिए यहाँ पर कौन है,
छत्रपति शिवाजी जो औरंगजेब से धर्म के लिए लड़ते रहे छत्रपति शिवाजी को क्या बोलता है कि माता भवानी, अम्बा भवानी, तुलजा भवानी उसको तलवार दिया था करके ऐसा मान्यता है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे फेमस कौन है? सबसे फेमस क्या है? महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी का आज भी क्या है कृत्य, उसके आज भी उसके गाने गाते रहते हैं वहाँ पर। कर्नाटक की मलजय शीतल मंद सुगंध विचारती है, भारत माता की धरती, वीर संतों की धरती। ठीक है, दक्षिण के बारे में यही लिखना है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अभी नीचे चलते हैं। क्रीड़ा स्थली प्रकृति कर्नाटक गौरव की गाथा है। ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಥಳಿ ಈಗ जो हमारी जो ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಕೃತಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಥಳಿಯೇ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಥಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಗಾತಾ है. भारत का सौभाग्य, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಭರ್ ಕಾ ಯಹ ಉನ್ನತ ಮಾತಾ है. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಭರ್ ಕಾ ಯಹ ಉನ್ನತ. ಟಿಪ್ಪು ಸೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಮೈಸೂರು आंग्लो प्रथम युद्ध, ಎರಡನೇ युद्ध, ಮೂರನೇ युद्ध, टिप्पू सुल्तान जो कि हम सबको टिप्पू सुल्तान के बारे में ना मैसूर हुली. टिप्पू से सुल्तान, विश्व ने जिनकी शक्ति मानी है. टिप्पू को देखो, टिप्पू ने ब्रिटिश से कैसा लड़ा, हैदर अली उसके पिताजी थे, सब हम लोगों को पता है. टिप्पू का नाम तो आज भी हमारे कर्नाटक में फेमस है. टिप्पू सुल्तान मैसूर हुली अंद ಹೆಸರಿರುವ टिप्पू सुल्तान को पूरे विश्व जानती है, जिनकी शक्ति मानी है. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ के बलिदानों की एक कहानी. ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮದ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದೆ. ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ रानी की यहाँ पर बलिदान जो कि अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया था. भारतीयता कन्नड़ नाडु में बहुरूपी समर्थी है. भारत कर्नाटक के रहने वाले लोगों के अंदर, ठीक है, फर्स्ट नेशन ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है. यह है हमारे कर्नाटक के बारे में लिखना है. मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ. परम पुनीत नीर कावेरी, परम पुनीत नीर कावेरी, परम पुनीत ನೀರ ಕಾವೇರಿ, ನೀರ ಕಾವೇರಿ ಹಮಾರಿ ಕಾವೇರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇರುವಂಥ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮಸ್ತಕಧರ ಕರ್ನಾಟಕ में ಕಾವೇರಿ ನದಿ उगम ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ? तलकावेरी. ठीक है, तलकावेरी कर्नाटक की सबसे फेमस नदी. दक्षिण की ही गंगा कावेरी नदी है. पंप महाकवि दर्शन, पंप ನಮ್ಮ ಪಂಪರನ್ನ पंप महाकवि के दर्शन कर लो चलकर कर्नाटक में. पंप कवि दर्शन ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, पंप ಮಹಾಕವಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸವೇಶ್ವರ್ या ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ कर्नाटक में आते. ನಮ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ, ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಯ್ಯ, ದಯಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಯ್ಯ, ಕಾವ್ಯ ಕವಿ ಕೈಲಾಸ ವ್ರಕ್ ಇಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಹೇಳಿದುವಂತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಬಸವಣ್ಣ ಭಾಗ್ಯವಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ರಮಸ್ಥೂಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕರ್ನಾಟಕ में गाते. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವಚನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಓದ ಬಂದಿರುವುದೇ. ಪಹಾಡ್ ಪೇ ಬಸಾಕರ್ ಘರ್, ಜಂಗ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಸೆ ಕ್ಯಾ ಡರ್ನಾ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಓದ ಬಂದಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇವು ನಮ್ಮ ವಚನಗಾರರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಚನಗಾರದಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. बसवेश्वर या अक्कमदेवी कर्नाटक में गाते हैं. रामानुजो आचार्य मेलुकोटो में दर्शन देते हैं. रामानुजो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक जो रामानुजो आचार्य है, मेलकोटन में दर्शन देते हैं. धर्म कर्म साहित्य कला संस्कृति का यहाँ अनुवर्ती है. भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है. तो इस तरीके से विद्यार्थी मित्रों, ये तो क्लास में लेंगे तो 3 दिन की क्लास है. मैं कोशिश किया हूँ आधा घंटा में इसको क्लोज करने के लिए. मैं चाहूँगा तो 3 घंटे की क्लास को 3 घंटे कहूँगा तो आपको अपार ज्ञान दे दूंगा, लेकिन समय बहुत अभाव है. विद्यार्थी मित्रों, आपको यही लिखना है. इसके क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट आपको बताया गया है. रामकृष्ण की जन्मभूमि में क्या उभरती है? रामकृष्ण, देखो ये मैंने फर्स्ट के अंदर रामकृष्ण के बारे में बता दिया. जन्मभूमि ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन. मानव के उत्तर प्रदेश की विशिष्टता का वर्णन कीजिए. उत्तर प्रदेश से नोट रही फर्स्ट वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब केसरी 5 नदियों से बना है. गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक जी, हर बच्चा यहाँ वीर है वो बताया हूँ. हरियाणा की संस्कृति में वो बता दिया हूँ. राजस्थान की वीरता बता दिया हूँ. बिहार की वो भी बता दिया हूँ. दक्षिण प्रदेश की महत्व बता दिया हूँ. कर्नाटक गौरवशाली इतिहास संस्कृति के संबंध में मानव के क्या उद्गार है. अब
संबंध में मानव के उद्गार है, सॉरी, दक्षिण की महत्व अपने शब्दों में लिखिए। कर्नाटक के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के संबंध में मानव के क्या उद्गार है? क्या ये क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों। आपको मैंने जो बताया हूँ उस ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ। ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ क्वेश्चन बरुತ್ತದೆ। तो मैं विद्यार्थी मित्रों को मैं यही बताना चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, बोरिंग नहीं कर लेना। ये वीडियो लंबी इसलिए हो रही है कि ये बहुत लंबा पोएम है, इसको बताने के लिए आपको 2-3 क्लास लगी। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बताएं इसको कनेक्ट करके आप लोग लिख देना, आपके 3 मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे। संदर्भ भी आगे तो डरना नहीं है। तो इसको एक बार देख लो, आपका पूरा का पूरा 3 मार्क्स और 1 मार्क्स इसी में हो जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।